Welcome to APS online classes. Today's topic is properties of addition and subtraction of integers. We have learned how to add integers and subtraction of integer also. So there are some properties of integers. First one is here, closure under addition. Closure property. Closure under addition. Okay, we have observed that what is the sum of an integer. When you add two or more integer, you definitely get an integer. Means integer is closed under addition. ओके जैसे आप ऐड करोगे 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 इज व्हाट 18 इज एन इंटीजर सी अनदर एग्जांपल हियर -8 plus 2 is what -6 so -6 is also an integer so here we observe sum of two integers or more integers is an integer so this property showing by the integer is called closure property okay so here since addition of integer gives integer we say that integers are closed under addition for any two integers a and b a प्लस बी इज़ एन इंटीजर जब भी दो इंटीजर में आप कोई भी इंटीजर ऐड करोगे किसी इंटीजर में किसी इंटीजर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको इंटीजर ही मिलेगा जैसे 2 + 3 = 5 ठीक है सो 2 + 3 = क्या 5 हो गया दिस सो दैट इंटीजर इज क्लोज अंडर एडिशन सो द क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट इफ द सम ऑफ any two or more integer is an integer then we can say that integer is closed under addition okay check here closure under subtraction check that is integer closed under subtraction okay statement 7 minus 9 is equal to -2 result is an integer 7 minus 2 is equal to what -2 no -2 is what -2 is an integer and see another example 17 minus -21 क्या मिलेगा 17 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस होगा +21 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 38 ये प्लस कैसे हो गया रुको पहले आपको आप समझा देते हैं ये प्लस कैसे हो जा रहा है यहाँ पे समझा दे रहा है -21 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ -21 इज व्हाट -21 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 तो फिर अगेन यहाँ माइनस लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ -21 का एडिटिव इनवर्स -21 होगा तो -21 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा ठीक है तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देते हैं ओके स्टूडेंट जैसे यहाँ पे देखोगे आप 21 का एडिटिव इनवर्स क्या लिखा है -21 तो एडिटिव इनवर्स का ये लिखने के लिए -21 का एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए क्या करोगे इसका साइन तो चेंज करोगे ना -21 हो जाएगा तो यही -21 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है 21 हो जाता है ओके इसीलिए अगर यहाँ पे -21 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा ओके नाउ वेरीफाई विथ मोर एग्जाम्पल हियर ओके -21 -10 -21 -10 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -21 -10
तो -21 हियर -10, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो अब बताओ -21 और +10 का सम क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। वी हैव लर्न इन जस्ट प्रीवियस वीडियोज़। okay, so -11 is what, -11 is also an integer, means we have seen here subtraction is also close under means integer is also close under subtraction. Okay, if a and b are two integers, then a minus b is also an integer. Okay, it's also an integer. Okay, so we can say that integer is close under subtraction. If a and b are two integers, ये मेंशन कर दिया गया है। if a and b are two integers, then a minus b is also an integer. do the whole number satisfy this property? चेक करते हैं कि होल नंबर भी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है और नॉट, नहीं, और नॉट। ओके, सी 2 and 3, two whole number, then subtract 3 from 2, 2 minus 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 is not a whole number, ना, is not a whole number, -1 is not a whole number, so we can say that whole number is not close under subtraction. So whole number is not close under subtraction. Okay, it is the bigger difference between integer and whole number, that integer is close under addition and subtraction, but whole number is not close under subtraction. Okay, here commutative property of addition. Commutative property of addition. Okay, see here, what is the commutative property of addition of integer? Let 1 and 3 or two integers. See here, 1 plus 3 is equal to what, 4, and 3 plus 1 is equal to 4. आप इसमें ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, 3 को 1 में ऐड किया हुआ तो भी 4 आ रहा, और 3 में 1 को ऐड कर रहा है तो भी 4 आ रहा है। 1 में 3 को ऐड किया तो 4 आ गया, और क्या किया यहाँ पे हमने, यहाँ पे 3 में क्या किया, 1 को ऐड किया तो भी 4 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 + 3 इज इक्वल टू वॉट, 3 + 1। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर, एडिशन का ऑर्डर चेंज करने से भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। सो वी कैन से दैट commutative property of addition hold for integer. Commutative property of addition for integer is hold. ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताया गया आपको। ठीक है, इफ़ यहाँ पे लिया हुआ, दो इंटीजर लिया हुआ, इफ़ ए एंड बी आर
B are two integers. Here A and B are two integers. Then A plus B is equal to what? B plus A. A plus B is equal to B plus A, which show that commutative property of addition of integer. ओके देखो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों आपको बताया जा रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई वी आर स्टडिंग about commutative property of addition and associative property of addition of integers. ओके सो हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसकी ये प्रॉपर्टी होती है. इट हेल्प अस टू फाइंड द सम आर टू क्विक simplification of expression, any expression. By using this property we can easily simplify the arithmetic expression. Okay, so first next property is associative property of addition. See this expression, -5 -3 -2. So -5 -3 -2 इस तरह से लिखा हुआ है. यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे. -5 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, प्लस फिर ब्रैकेट में -3 प्लस -2 लिखा हुआ है. ओके, अब आप देखो -5 इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो बॉडमॉस रूल से. बॉडमॉस रूल 5th में हम लोग पढ़े हैं. तो -5 इसको सॉल्व करेंगे. पहले ब्रैकेट को -3 प्लस -2 -3 प्लस -2 दो इंटीजर, इनका सम कैसे फाइंड करोगे? इनके सम को फाइंड कर लेंगे हम लोग. कैसे फाइंड करोगे आपको बताया है. -3 प्लस -2 इक्वल टू वॉट? -5. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -5. अब आप देख रहे होगे क्या हो जाएगा ये -5 प्लस -5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -10 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई? इसकी वैल्यू हो गई -10. इसकी वैल्यू -10. नाउ अब इसमें क्या कर लिया? -5 -3 की ग्रुपिंग कर लिया पहले. -5 -3 की ग्रुपिंग पहले कर लिया है. तो चलो इसको हम दूसरे इंग से सॉल्व करते हैं. -5 प्लस -3 एक साथ रखा हुआ इस ब्रैकेट में. ठीक है, चलो ब्रैकेट दिखा दे रहे हैं आपको. इरेज कर देते हैं, अब करते हैं. ओके, इसको देखो सभी लोग, ये क्या है? -5 और -3 को एक साथ रखा हुआ ना ब्रैकेट में. इस ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. -5 प्लस -3 इस ब्रैकेट में प्लस -3. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इतने की ही वैल्यू क्या हो जाएगी? -8. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस -2. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10 हो गया. तो इसकी भी वैल्यू आपको क्या आई थी? -5 प्लस -3 प्लस -2. तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आई थी? -10 आई थी. इसकी वैल्यू -10 और इसकी भी वैल्यू -10. तो हम लोग क्या कर कहेंगे? यहाँ पे ग्रुपिंग करने से रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया. तो अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ कोई भी A, B एंड C 3 इंटीजर्स, तो आप लोग ऐसे भी सम फाइंड कर सकते हो. A प्लस B प्लस C कर लो, या फिर A प्लस B का ग्रुपिंग ऐसे करके फिर ऐसे कर लो. B प्लस C के साथ सम कर लिया एक साथ, उसमें A ऐड कर लिया. अगेन A प्लस B को एक साथ रखा, फिर C को इसमें ऐड कर लिया. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ओके, चलो इसको करते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है -3 1 प्लस -7. अब यहाँ पे क्या किया हुआ है? इसको सिंप्लीफाई करना. -3 यहाँ पे रखा हुआ. ठीक है, अब 1 प्लस -7 इक्वल टू वॉट? -6. ये हो गया -6. तो -3 प्लस -6 इक्वल टू वॉट? -9. सिमिलरली -3 प्लस 1 इक्वल टू वॉट?
-2 यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रख लिया -2, ये इसके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -7, ये तो -2 प्लस -7 इक्वल टू वॉट -9, -2 प्लस -7 इक्वल टू वॉट -9 और -9 ये भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा, यहाँ पे कह रहा है ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है, तो इक्वल तो है ही, इसकी भी वैल्यू क्या आई थी -9 और इसकी भी वैल्यू क्या आई थी -9 आए थे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यस -3 प्लस 1 प्लस -7 इक्वल टू -3 प्लस 1 प्लस -7। ओके, अभी हमने ये डिस्कस किया आपसे, हमने अभी ये डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया। For any integers a, b and c, we can say that a plus b plus c is equal to a plus b plus c। एडिटिव आइडेंटिटी, अब देखो सभी लोग, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, आपने होल नंबर में ये भी पढ़ा है, अभी भी मैं आपको बताया भी इस प्रीवियस वीडियो में, किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो क्या मिलता है, सेम वही नंबर मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर इज 0, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स दैट इंटीजर विच इज एडेड टू एनी इंटीजर, अगेन वी गेट दैट इंटीजर, मीन्स दैट इंटीजर इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, सी हियर, यहाँ पे देख रहे होगे आप सभी लोग, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। ओके, सो 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी अगेन फॉर इंटीजर ऑल्सो। Is it an additive identity again for integers also? Consider, see the example to rule हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रूल हो सकता है कि नहीं, 0 हो सकता है कि नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। सो -8 में अगर 0 आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -8 ही तो मिलेगा ना, -8 प्लस 0 अगर हमने कर दिया तो क्या मिला, -8 मिल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली 0 को क्या कर सकते हैं, 0 को कर सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्या कर सकते हो, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, अब यहाँ पे देखो 0 प्लस -8 यहाँ भी मिल गया, 0 प्लस -37 तो -37 मिल गया, 0 प्लस ब्लैंक लिखा हुआ यहाँ पे -43 हो गया। तो -40 0 में क्या ऐड करोगे, -43 आ जाए, तो -43 तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक। अब 0 में बताओ कुछ नहीं है, 8 ऐड करोगे तो 8 ही तो मिलेगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। अब नथिंग में जो भी ऐड करोगे तो सेम वही तो मिलेगा ना, 0 प्लस -43 इक्वल टू -43, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट ब्लैंक छूटा हुआ, ब्लैंक प्लस 0 इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 8 लिखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 ही मिलेगा। सपोज 8 नहीं लिख रहे हो, 9 लिख रहे हो तो क्या मिलेगा, 9 प्लस 0 इक्वल टू 9 ही मिलेगा ना। ओके, सो नाउ वी हैव वेरीफाइड दैट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, सो a प्लस 0 इक्वल टू a, 0 प्लस a, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव भी वेरीफाई कर रहा, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू वॉट, a होगा। ओके, नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ट्राई दिस को मैं आपको रेगुलर क्लास में भी करवाता था, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ भी मैं करा रहा हूँ, सो प्लीज़ डू इट। So first question is here,
Write a pair of integers whose sum gives a negative integer. Write a pair of integers whose sum gives a negative integer. कह रहा है कि आपको क्या लिखना है, ये पेयर लिखने हैं जिसका सम करने पे क्या मिले आपको, नेगेटिव, इसका सम करने पे नेगेटिव इंटीजर मिले। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कोई भी दो इंटीजर आपको चूज करने हैं, एक स्मॉलर होना चाहिए, एक ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लिया, इजी वे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो जैसे 2 और 3 पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। सो फर्स्ट choose 2 positive integer which one is greater than and put a negative sign before greater integer। तो ये हो गया 2 - 3। अब 2 - 3 का एडिशन सम फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, सम इसका क्या होगा, -1 होगा। -1 होगा तो क्या मिल गया आपको, नेगेटिव इंटीजर मिल गया ना, नेगेटिव इंटीजर। तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स और नेगेटिव इंटीजर। दूसरा पेयर भी तो लिख सकते हो आप, जैसे 4 और यहाँ पे 9 लिख लिया। और ये 9 इज़ ग्रेटर देन 4, सो 9 के जस्ट पहले क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन लिख दिया। ओके, चलो राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स 0, जिसका सम 0 हो जा रहा है। तो दो इंटीजर्स का सम कब 0 होता है, जब उसमें से कोई एक इंटीजर दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हो। ठीक है, तो 5 और -5 होना चाहिए पेयर, इसी का इसका सम क्या होगा, 0 होगा ना। 5 प्लस -5, इसका ये क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जिसका सम क्या हो, दोनों इंटीजर से स्मॉलर हो। सो यू हैव टू टेक बोथ इंटीजर, बोथ नेगेटिव इंटीजर। इफ यू चूज both negative integer, then their sum is less than those two नेगेटिव इंटीजर। जैसे यहाँ पे देखो -2 और -3 हमने ले लिया। -2 -3 का सम आपको कई बार बता चुका कि इसका सम क्या होगा, -2 एंड -3 का सम होगा -5। तो -5 क्या है, -2 से भी छोटा है, -3 से भी क्या है, स्मॉलर है। ये -5 है, -5 लेस देन -3। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, सम ऑफ -2 एंड -3 इज स्मॉलर देन -2 एंड -3। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, दिस, सॉरी अभी भी नहीं दिख रहा, ये रहा। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। इसको करो, उसमें से क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, सम क्या होना चाहिए, एक इंटीजर से स्मॉलर होना चाहिए, एक से ग्रेटर होना चाहिए। कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मिल गया, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। क्या मिल गया हमें, 2 और -3। अब इसका सम फाइंड करो, चलो 2 + -3 क्या मिल गया, -1। ये हो गया -1। अब ये -1 हो गया, तो -1 है क्या, -1 इससे तो क्या है, -3 से ग्रेटर है, लेकिन 2 से क्या है, स्मॉलर है। तो ये पेयर क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर। नाउ एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ इंटीजर। तो बोथ इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लो। जैसे 2 और 3 चूज कर लिया, 2 और 3 चूज कर लोगे तो इसका सम क्या मिलेगा, 2 + 3 = व्हाट, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि सम ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दोज 2 इंटीजर। ओके, सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस दैन दोज 2 इंटीजर।
Okay, write a pair of integers whose difference gives a negative integer. 0. C, an integer is smaller than both the integers. An integer. Oh, I wish that you will do it at home. Okay, इसको आप अपने घर में ही करो. नहीं आता तो आप क्या करोगे, मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसका प्रॉब्लम भेजोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. देन आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन ऑफ दिस. ओके, एग्जाम्पल है ये. राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3. राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3. ईजी है. सम क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 हो गया. डिफरेंस इज -5. डिफरेंस इज -5. 9 -4 ले लिया तो इसका डिफरेंस क्या मिला यहाँ पे, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा. -9 -4 ये क्या हो जाएगा, -9. ये प्लस हो जाएगा +4. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -5, जो कि यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. यहाँ सॉल्व किया है ना ये. ओके, डिफरेंस इज 2. डिफरेंस इज 2 तो 6 4 तो ले सकते हो. 6 में से 2 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा. यहाँ पे क्या लिया है, -7 और -9 लिया तो -7 -9 का डिफरेंस फाइंड करोगे क्या मिलेगा, -7 -9 तो -7 + 9 क्या मिल गया, 2 मिल गया. ओके, और यू कैन टेक दिस वे 1 एंड -1 क्या मिल जाएगा, 1 + 1 2 हो गया डिफरेंस. अब देखो यहाँ पे 10 -10 + 10 सम 0 होना चाहिए था. तो कोई भी इंटीजर लो उसका सम एडिटिव इनवर्स आप लिख लो. ठीक है, -5 और 5. देन सम ऑफ दिस इंटीजर 0 हो जाएगा. ओके, so in this videos now we have learned what property of integer. first one is what, closure property. closure property देख लेते हैं फिर से. closure property क्या था, sum of any two integer, sum of 2 or more integer is always an integer. okay, means integer is closed under addition. subtraction भी, subtraction में क्या था, a and b are two integers, then a minus b is also an integer, is an integer. okay, now तो हम लोग क्या कर सकते हैं, integer is also closed under subtraction. integer is also closed under subtraction. now commutative property of addition of integers मीन्स कि ऑर्डर चेंज करने के, सम का ऑर्डर, एडिशन का ऑर्डर भी चेंज करने के बाद भी सम चेंज नहीं होता है. यहाँ पे b को a में ऐड किया, यहाँ पर b में a को ऐड किया हुआ तो भी सम चेंज नहीं हुआ है. सम चेंज नहीं हुआ है. ओके, ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर. integers. okay, commutative property of addition of integers. और हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में था a + b + c इक्वल टू व्हाट, a + b + c कर लिया तो भी क्या हुआ, सम
चेंज नहीं हुआ, सेम ही हमें मिला, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम मिला। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ और क्या पढ़े हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, तो योर आंसर विल बी 0। क्या बताओगे उसको, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 0, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। Okay, so dear student, exercise 1.1 is homework for you. Okay, thank you student.